Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, soil. The upper layer of the earth is covered with soil. All our homes, schools, roads, factories, etc. are made on the soil. Plants which provide us food also grow in the soil. We grow fruits, vegetables and crop plants in the soil. Soil provides support, water and minerals to the plants. Thus, soil is very important and useful for us. जो अर्थ की अपर लेयर है वो आपकी सॉइल से कवर्ड है. हमारे घर, स्कूल, फैक्ट्रीज ये सारे कहाँ पे बने हैं? सॉइल पे. प्लांट्स आपके जो हैं वो किस पे ग्रो करते हैं? सॉइल में, राइट? तो सॉइल इसीलिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड? Earth is made up of rocks. These rocks keep breaking into smaller pieces. The action of sun, water and wind breaks the rocks. The sun heats them to expand. The night cools them to contract. Alternate heating and cooling cracks and breaks the rocks. Water trapped in the holes of rocks freezes and expands to force the rocks to crack. Running water and wind push and roll the rock pieces which rub against each other till they become tiny particles of soil. After floods, this soil is left over the fields. अच्छा, अर्थ जो है ना आपकी रॉक से बनी है. ये रॉक्स आपकी ब्रेक होती रहती हैं छोटे छोटे पीसेस में बाय द एक्शन ऑफ सन, वाटर और विंड, राइट? फिर सन जो है, जैसे आपकी जो रॉक है उसको क्या करते हैं कि ब्रेक होती है. फिर सन जो है, सन की जो हीट है इसे एक्सपेंड करते हैं. फिर नाइट में क्या होता है, मौसम ठंडा होता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. तो हीटिंग, कूलिंग ऐसे होते रहते हैं. तो उसकी वजह से जो क्रैक्स है जो ब्रेक पड़ते हैं आपके रॉक्स में. फिर जो वाटर इन होल्स में आपका ट्रैप हो जाता है वो फ्रीज होता है एंड देन वो एक्सपेंड हो जाता है, जिससे कि जो रॉक्स आपकी क्रैक हो जाती हैं. रनिंग वाटर है या जो विंड है वो उसको पुश करते हैं, फिर रोल करते हैं रॉक पीसेस को, फिर वो एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं और उसके बाद वो बनते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स सॉइल के. रॉक पार्टिकल्स वेरी इन साइज. Large grains are called gravel. Sand has grains much smaller than gravel. It is grey, brown or yellow in color. It is found on the seashores or in deserts. Clay is made of very fine grains which stick together. Gravel, sand and clay vary in color from place to place. जो large grains है उसे हम कहते हैं gravel. Sand ग्रेन्स जो होते हैं वो ग्रेवल से छोटे होते हैं. ये ग्रे, ब्राउन और येलो कलर में होते हैं. ये आपको डेजर्ट्स में या सी शोर्स में पाए जाते हैं. क्ले जो है इसमें बहुत ही फाइन ग्रेन्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं, राइट? फिर जो ग्रेवल, सैंड या क्ले है ये आपका वेरी करता है कलर में प्लेस टू प्लेस, यानी से आपको अलग डिफरेंट प्लेसेस में इनका कलर जो है वो डिफरेंट मिलेगा. Kinds of soil. There are 3 kinds of soil: sand, clay and loam. Sand particles are rough in touch. There's a lot of air in the space between them. Water seeps through the sand quickly. It can hold only a little amount of water. Clay particles are very fine and sticky. There is no air or space between them. Clay particles absorb water and swell. They get closer than before. Water seeps through them slowly. This soil can hold a lot of water. अच्छा, आपके 3 kinds of soil होते हैं. नंबर 1 है सैंड. इसके पार्टिकल्स अगर आप इसे टच करेंगे ना तो आपको ये रफ होंगे. इनके बीच में काफ़ी सारा स्पेस होता है एयर का, लॉट ऑफ एयर इनके स्पेस में होता है. फिर वाटर जो है वो सीप करता है सैंड में क्विकली, और बट ये बहुत थोड़ा अमाउंट जो है वाटर का उसको होल्ड कर पाता है. क्ले पार्टिकल्स आपके बहुत फाइन होते हैं, स्टिकी होते हैं. इसमें कोई एयर स्पेस आपका नहीं होता है, राइट? एंड आपका क्या होता है कि ये जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते स्वेल हो जाते हैं, फिर ये और ज़्यादा क्लोजर आ जाते हैं. तो वाटर जो है इनके फिर थ्रू स्लोली सीप करता है. लोम is a mixture of equal amount of sand and clay. It can hold enough air and water. Water passes through the soil slowly. It also has a lot of humus. Humus is the dead, decayed remains of plants and animals. It has enough minerals and keeps the soil loose so that the roots can go deep easily. Loam अब आपका मिक्सचर है, इसमें मतलब equal amount of sand and clay है. ये water and air को hold कर पाता है. In fact, enough. तो वाटर जो है इस पास करता है इस सॉइल के थ्रू स्लोली. इसमें काफ़ी सारा ह्यूमस भी होता है. ह्यूमस आपको पता है कि ह्यूमस आपका रिमेन है आपका जो डेड और डिकेड प्लांट्स का. इसमें मिनरल्स भी होते हैं इसकी वजह से, और इसीलिए जिस सॉइल को ये लूज रखता है जिससे कि जो रूट्स हैं वो डीप जा सकते हैं ईजिली. व्हाट डज सॉइल कंटेन? Soils of different places on the earth differ from one another. Most of the soils contain gravel, fine sand, clay, humus, moisture and air. अर्थ में जो डिफरेंट प्लेसेस की जो सॉइल्स होती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं,
वैसे ज़्यादातर सॉइल्स में आपका ग्रेवल होता है, फाइन सेंट होता है, क्ले होता है, ह्यूमस, मॉइस्चर एंड एयर. Experiment 1. Take some garden soil in a jar and add some water. Shake it well and allow it to settle. Coarse grain of gravel settle at the bottom. Fine grains of sand settle above the gravel. Next is a layer of muddy water containing fine particles of clay. Floating on the top is humus, the remains of dead plants and animals. देखिए आपको क्या करना है, एक जार में गार्डन सॉइल लेनी है, राइट. उसमें पानी डालना है, उसको अच्छे से शेक करना है, उसको थोड़ी देर के लिए सेटल होने देना है. इसके बाद आप देखेंगे इस तरह से आपकी जो लेयर्स बनेगी, सबसे नीचे होंगे ग्रेवल, राइट. फिर उसके ऊपर होगा सैंड पार्टिकल्स, फिर उससे ऊपर होंगे क्ले और सबसे ऊपर ह्यूमस तैरता हुआ नजर आएगा. एक्सपेरिमेंट 2. Take a jar and put some soil in it. Close it with a lid and place it in the sun. After about 1 hour, you will see droplets of water on the sides of the jar. This shows that soil has water. आपने एक जार लेना है, उसमें कुछ सॉइल डालनी है, फिर आपने उसको ढक्कन लगा के बंद करके सन में रख देना है. अब जब आप 1 घंटे के बाद देखेंगे तो आपको जार के साइड्स में ना वाटर की ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे. What does it show? It shows that soil has water. Experiment 3. Take some soil in a jar. Pour water on it. Air bubbles come up. This shows that air is present in the space between the soil particles. It comes out in the form of bubbles. अब आपको फिर से एक जार में सॉइल लेनी है, उसमें कुछ वाटर डालना है, उसमें से एयर बबल्स आपके आएंगे. तो ये क्या शो करता है कि एयर जो है, जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है ना, उसमें प्रेजेंट होते हैं. प्लांट्स एंड द सॉइल. If there is too much water in the soil, it becomes waterlogged and plants die. Clay is such a soil, but we grow paddy in it, which requires excess of water. देखिए अगर सॉइल में बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा तो वो वाटर लॉक्ड हो जाएगी और प्लांट क्या होंगे, दे विल डाई. तो क्ले एक ऐसी सॉइल है, बट पैडी जो है वो ऐसी ही सॉइल में ग्रो करती है क्योंकि उसको एक्सेस ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है. If too little water stays in the soil, plants will not survive. Sand is such a soil, but we grow cucumber and gourd in it. Their roots need a lot of air, which it has. Most plants need just enough water. Loam hold just enough water. We grow most fruits, vegetables and crops in it. These plants need lots of minerals, which only humans can supply. Thus, loam is the most fertile soil for plants. अच्छा, अगर हमने पौधों को कम पानी दिया, यानी सॉइल में अगर कम पानी भी रहा तो वो भी आपका थोड़ा सा डेंजरस है. डेंजरस इन द सेंस कि प्लांट्स जो हैं वो आपके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. सैंड आपकी ऐसी सॉइल है, बट हम सैंडी सॉइल में आपके क्यूकम्बर एंड जो गोर्ड होते हैं वो ग्रो करते हैं क्योंकि इनकी रूट्स को बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, जो कि आपके सैंडी सॉइल में होती है. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत सारे नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऐसे हैं जिनको इनफ वाटर की ज़रूरत होती है. तो लोम सॉइल आपकी ऐसी है, राइट. हम बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या क्रॉप्स में ग्रो करते हैं. फर्टिलाइजर्स. Fertilizers or manures are mixed with the poor soil. Fertilizers provide plants the minerals they need. Rotten plants and cow dung are natural manures. Artificial fertilizers are prepared in chemical factories. देखिए कोई भी पुअर सॉइल होती है तो उसमें फर्टिलाइजर्स या फिर मैन्यूर्स को ऐड किया जाता है उसकी फर्टिलिटी को इन्हांस करने के लिए. तो जो फर्टिलाइजर्स हैं वो प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, मिनरल्स जिनकी इनको ज़रूरत होती है. रॉटन प्लांट्स है या काउ डंग है आपके नेचुरल मैन्यूर्स है, जबकि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स को प्रिपेयर किया जाता है फैक्ट्रीज में. द फार्मर्स फ्रेंड. Earthworms live in the soil. They eat it and excrete after making it soft. As they build their tunnel homes, they turn the soil loose and let more air into it. They also drag leaves, etc. down their tunnels. Dead leaves and dead earthworms decay to form humus and make the soil fertile. अच्छा, earthworms soil में रहते हैं, आपको पता है, ये उसे खाते हैं and then excrete करते हैं after making it soft. तो ये क्या करते हैं, ये टनल होम्स बनाते हैं अपने, ठीक है, जिससे कि जो सॉइल लूज हो जाती है एंड फिर क्या होता है कि ज़्यादा उसमें एयर आपकी आती है. तो इसके अलावा ये लीव्स को भी ड्रैग करते हैं अपने टनल्स में, राइट. फिर ये डेड लीव्स और जो डेड अर्थवर्म्स हैं वो डीके होकर ह्यूमस बनाते हैं और जिसकी वजह से सॉइल फर्टाइल हो जाती है. फॉरगेट मी नॉट. Soil is formed by the breaking up of rocks. Action of the sun, the rain and the wind cracks and breaks the rocks. Soil particles differ in size and color. Soil contains gravel, sand, clay, humus, moisture and air. 3 kinds of soil are sand, clay and loam. Decayed bodies of plants and animals form humus. Loam is best for the growth of plants. Remember that. चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.